ਨਮਸਕਾਰ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਬਲਬੀਰ ਜੰਡੂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸੱਜਣ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2020 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਵਿਕਟਰੀ ਕਲੋਨੀ 1950, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਲਕੱਤਾ 'ਚ ਵਸੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਵਤੀ ਘੋਸ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਭਾਸ਼ਵਤੀ ਜੀ ਆਪਕਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿੰਦੂ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਵਤੀ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਸ਼ਵਤੀ ਜੀ ਉੱਘੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਭਾਸ਼ਵਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਕਟਰੀ ਕਲੋਨੀ 1950 ਨਾਵਲ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ 2020 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ? जी शुक्रिया जिंदू जी इस सवाल के लिए। पहली बात तो ये नॉवेल जो अब विक्ट्री कॉलोनी 1950 या 1950 ये छपी 2020 में है, लेकिन इसकी शुरुआत काफी पहले हो गई थी और मैंने काफी पहले से लिखना शुरू किया इसको। और इसकी जो प्रेरणा इसकी मुझे मिली वो मेरे अपने परिवार से ही मुझे मिली, क्योंकि मेरे जो नाना और नानी थे वो खुद विस्थापित हुए बंटवारे के समय। उनका जो पुश्तैनी उनकी जो घर था वो अब बांग्लादेश में है। उस वक्त वो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका था, तो उनको अपना सारा प्रॉपर्टी सारा कुछ छोड़कर इधर आना पड़ा। मेरे नाना जी कलकत्ते में काम करते थे, लेकिन वो फिर वापस नहीं जा पाए। जो उनकी जो गांव था उनका जहाँ वो रहते थे, गांव था जो जी पितरी गांव था जो, हाँ जी पितरी गांव, वो उधर वापस नहीं जा पाए। और फिर उनका दोबारा दो बार उनका जो है विस्थापन 2 बार हुआ। एक तो वो पूर्वी पाकिस्तान को छोड़ के उनको आना पड़ा, फिर कलकत्ते में भी वो नहीं रह पाए, उनको काम के वजह से दिल्ली फिर आना पड़ा। और फिर दिल्ली उनके लिए, उन लोगों के लिए बिल्कुल एक नई जगह थी। इधर का उनकी भाषा बोल लीजिए या जो रहन सहन है, जो वहाँ का जो भी वातावरण, सब कुछ उनके लिए बिल्कुल नया था। तो ये 2 बार उनको ये जो माइग्रेशन है एक तरीके से उनको एक्सपीरियंस करना पड़ा। तो इसकी कहानियां हम सुनकर बड़े हुए। उनका गांव कैसा था और मेरी नानी का बचपन कैसा बीता, वो हर वक्त याद करती थी उस अपने जगह को।
और इसके चलते हमें भी लगा कि ये जहाँ हम बड़े हो रहे हैं ये शायद हमारा मूल निवास नहीं है। तो वो जो है वो मेरे अंदर एक कहानी के रूप में वो बड़ा होने लगा। आपके आपके नानी जी ने भी कुछ लिखा था इसके बारे में? जी, मेरी नानी जो है अमिया सेन उनका नाम है, वो बांग्ला में लिखती थी और वो उन्होंने काफ़ी लघु कहानियाँ लिखी हैं। उन्होंने 1-2 किताबें भी लिखी हैं, एक बच्चों के लिए है जो भारत की आज़ादी के बारे में है और दूसरी किताब उनकी है। उसका नाम क्या है, बता सकोगे आप? हाँ जी, उसका नाम है शोनाई शोनो रूपकथा, जिसका मतलब है सुनो मैं तुम्हें एक रूप कहानी सुनाती हूँ। क्योंकि उनका बोलने का मकसद ये था कि जो भारत की आज़ादी की जंग थी, वो अगर अब के बच्चों को आज के दौर के बच्चों को सुनाई जाए वो कहानी, उनको वो शायद रूप कथा लगे, एक फेयरी टेल के तौर जी, पे जी, जी, उनको शायद वो बातें सुनने में लगेंगी। तो जी, वो जी। उनका नाम उन्होंने उस हिसाब से दिया। और उन्होंने नई दिल्ली पे भी एक छोटी-सी किताब लिखी थी, नई आज़ादी के बाद नई दिल्ली के जो जो चेहरा था उसका, उसके बारे में भी उन्होंने। क्योंकि वहां भी बहुत ज्यादा लोग पाकिस्तान से उठकर आए थे जो दिल्ली में ही बसे आने के बाद। जी, वो जी। पंजाब की तरफ से भी आए लोग वो। जी, उधर से ही ज़्यादा आए थे, तो उस बारे उनकी वो किताब है। और उनकी लघु कहानियाँ बहुत हैं, उनमें बहुत सी कहानियाँ इस बारे बँटवारे के विषय पे केंद्रित हैं। तो उन कहानियों को भी मैंने जब पढ़ा तो मुझे जो जो बहुत दर्दनाक और भयानक जो वो दौर था, उसका मुझे एकदम थोड़ा ज़्यादा अनुभव हुआ। और उनकी एक कहानी विशेष करके मेरे को मुझे उसने बहुत इन्फ्लुएंस किया। और जी, उस कहानी में 2 पात्र थे, एक भाई और बहन, जो कि बँटवारे के बाद जिनको आना पड़ता है भारत में शरणार्थियों के तौर पर। तो मेरी जो कहानी है उसमें भी 2 एक भाई और बहन के पात्र हैं, जो उसी परिस्थिति में उनको आना पड़ता है। लेकिन मैंने उनका जो भविष्य है उसको थोड़ा अलग तरीके से सोचने की कोशिश की, कि जी। वो कलकत्ते आके कैसे पुनर् पुनर्वासन उनका कैसे होता है, वो फिर पुनर्वास से जिसको बोलते हैं। पुनर्वास कैसे होता है, वो फिर से अपने आप को कैसे स्थापित करते हैं, नए तरीके से ज़िंदगी कैसे शुरू करते हैं। तो इसके बारे में मैंने कहानी लिखी। और एक और इसमें मसला है जो कि है जो पंजाब साइड का जो बँटवारा हुआ था, उस विषय पे बहुत चर्चित किताबें लिखी गई हैं और अलग-अलग भाषाओं में उस विषय पे काफ़ी काम हुआ है। काम हुआ, बिल्कुल ठीक। फ़िल्में भी बनी हैं, किताबें भी लिखी गई हैं, खुशवंत सिंह ने लिखी हैं, वापसी सिधवा ने लिखी हैं, भीष्म साहनी ने लिखी हैं। अलग-अलग भाषाओं में उस तरफ का जो बँटवारा था उसके बारे में लोगों को बहुत जानकारी मंटो है। ने लिखी है, मंटो ने। मंटो ने बहुत कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन जो पूर्वी पाकिस्तान की तरफ से जो बँटवारा हुआ, उसके बारे फ़िक्शन राइटिंग अंग्रेज़ी में उतना नहीं है। तो इसीलिए एक गैप भी मेरे को लगा कि है, जिसको मैंने थोड़ा पूरी करने की कोशिश की, क्योंकि किताबें ज़्यादा है नहीं, कहानियाँ ज़्यादा नहीं सुनने को आती या पढ़ने को नहीं मिलती। तो इसमें कोई उसके साथ हीरो भी जैसे होता है कि एक तो आप वो लड़की की बात कर रहे हैं, उसका भाई भी साथ में आया या वो नहीं आ पाया? नहीं, दोनों ही आ जाते हैं, उनके माता-पिता की मौत हो जाती है और वो दोनों ही आ जाते हैं जब दंगे छिड़ जाते हैं उनके गाँव में। एक आप इसमें वो जिक्र करते हैं कि कोई अमीर आदमी रहता है सामने, वो उसकी बात भी आप की है इसमें आपने। जी, तो जो 2 मुख्य पात्र हैं किताब के, एक तो अमला मान्ना है जो कि ये शरणार्थी लड़की है। वो अपने भाई के साथ आती हैं और आने के थोड़े वक़्त के बाद ही वो दोनों भी बिछड़ जाते हैं एक-दूसरे से। और उसका कारण क्या होता है? वो क्यों बिछड़ जाते हैं? कोई क्योंकि वो बहुत एक
अजीबोगरीब परिस्थिति में वो पहुंचते हैं, जबकि बहुत ज्यादा अफरा तफरी है चारों तरफ। वो सियालदह स्टेशन में पहुंचते हैं जहां पहले से ही बहुत भीड़ जमी हुई है रिफ्यूजियों की, शरणार्थियों की, और काफी भगदड़ है और बहुत ज्यादा अफरा तफरी का माहौल है। उसमें वो दोनों मतलब बिना पूरी कहानी बताए उसके चलते वो दोनों बिछड़ जाते हैं। और फिर जो अमला की जो कहानी है, उसका जो जीने का मकसद है वो सिर्फ है अपने भाई को खोज निकालना। वो एक नई जगह में आ चुकी है, इस शहर का उनको कुछ पता नहीं है। भाषा जो कि बोली तो बंगाली है, लेकिन वो किसी शरणार्थी कैंप में रहती है या ये कॉलोनी में ही रहती है? नहीं जी, वो आके तो उनको कैंपों में ही जाना पड़ता है, क्योंकि उनको कुछ पता है नहीं कहाँ रहना है, क्या करना है। तो जो दूसरे मुख्य पात्र है किताब के, उनका नाम है मानस दत्ता। वो इस शिविर में वो एक वॉलंटियर के तौर से काम करते हैं। और उनका जो सामाजिक बैकग्राउंड है वो बिल्कुल विपरीत है अमला के। वो अमीर खानदान से बिलोंग करते हैं और उनकी शिक्षा एकदम आगे तक बढ़ रही है। उनको पैसे की, आर्थिक तौर पे उनको कोई चिंता नहीं है, कोई किसी बात की उनकी कमी नहीं है। और उसके विपरीत है ये अमला जिन्होंने सब कुछ खो दिया है। तो इन दोनों की कहानी है कि ये कैसे एक दूसरे के परिचय में आते हैं और फिर कहानी आगे बढ़ती है। और अमला का बस एक ही मकसद है कि वो अपने छोटे भाई कार्तिक जो बिछड़ चुके हैं उनसे, उनको ढूंढ निकाले इस बड़े शहर में। आपके पास अगर नावल है अभी तो आप दिखा सकें तो हमारे दर्शकों के लिए वो अच्छा रहेगा। जी, ये है मेरी किताब। थोड़ा ऊपर, हाँ ये ठीक है, विक्ट्री कॉलोनी 1950। ठीक जी जी। और ये इसके पब्लिशर है योडा प्रेस। अच्छा, तो इसके अलावा भी आपने कुछ और, जैसे आपने अच्छे अनुवाद भी किए हैं कुछ, वो भी उसके बारे में भी आप कुछ जानकारी दो। जी, मैंने एक किताब का अनुवाद किया है, वो भी आपको दिखाती हूँ। इसका नाम है माय डेज विद राम किंकर बैज। और ये किताब है भारत के बहुत ही जाने माने कलाकार रहे हैं चित्रकला और मूर्ति कला के क्षेत्र में, राम किंकर बैज, जो कि उन्होंने शांति निकेतन में अपनी शिक्षा पूरी की। और रविंद्रनाथ टैगोर जीवित थे उस वक्त, उन्होंने शांति निकेतन विश्व भारती ज्वाइन किया और भारत के पहले आधुनिक मूर्तिकार माने जाते हैं। तो उनके जो पड़ोसी आप थे, नाम उनका दोबारा बताओगे नाम? हाँ जी, राम किंकर बैज। राम किंकर बैज जी। जी। और उनके पड़ोसी थे सोमेंद्र नाथ बंदोपाध्याय साहब। और उन्होंने वो जाके मिलते थे बैज जी से और बातचीत करते थे। और उनकी जो ये कॉन्वर्सेशंस है, उन्होंने बस उसको लिपिबद्ध किया। और वही ये किताब है कि वो उनको किंकरदा बुलाते थे, तो किंकरदा के पास जाके बातचीत करना। और काफी अलग अलग विषयों पे, अलग अलग मुद्दों पे उन्होंने बात की है। कला के बारे में ज्यादा है, लेकिन शांति निकेतन का माहौल क्या था जब टैगोर जीवित थे, और किस तरह के काम वो करते रहे, और किन कलाकारों से मिले, उनके जो छात्र आगे जाके और भी बड़े बड़े काफी मतलब उन्होंने भी काफी नाम कमाया। उनके जो छात्र थे उनके बारे में बात है। तो ये काफी रोचक एक जो उनकी पर्सनालिटी थी, राम किंकर बैज की काफी रोचक पर्सनालिटी है, और लीग से हटके उन्होंने काफी काम किया। तो नए आया उन्होंने जोड़े इस विधा में। और तो उसका परिचय मिलता है कि वो किस तरीके से, किस लिहाज से बात करते थे। और उनकी शख्सियत कैसी थी?
शख्सियत कैसी थी, बिल्कुल बिल्कुल जुदा शख्सियत थी और बहुत ही आकर्षक कह सकते हैं। तो कब छपी ये अनुवाद की आपकी जो ये बुक है? ये 2012 में अच्छा। छपी थी। हाँ। तो इसके अलावा आपने जैसे आप कहानियां भी लिखती हो, कविता भी लिखती हो, कहानियों की भी कोई किताब छपी आपकी या कविता भी की कोई छपी? नहीं, मेरी कहानियां और कविताएं अलग अलग एंथोलॉजीज में छपी हैं। उनकी कोई अभी मतलब मेरी कहानी कोई संग्रह ऐसे नहीं छपी। ऐसे नहीं छपी। हाँ, लेकिन अलग अलग तो वो जो जर्नल। आपके वो जो कहानियां हैं उनका विषय कैसा है? सामाजिक है, आर्थिक है, कौन सी कैसी कहानियां हैं वो? अलग अलग विषयों पर हैं, जैसे कोई आप बता सकते हैं मिसाल के तौर पे? हाँ, जैसे कि अब मैं कनाडा में रहती हूँ, तो यहाँ के जो इमिग्रेंट्स हैं, यहाँ जो आते हैं भारत से, उन उन लोगों की दास्तान मैंने लिखी है उन कहानियों में। फिर ज्यादातर मेरी कहानियां जो भी मैं लिखती हूँ वो भारत के परिप्रेक्ष्य में ही होता है। हालांकि मैं कनाडा में 10 साल से रह रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी जो जानकारी है वो अभी भी भारत को लेके ज्यादा ज्यादा मतलब विशाल है। हाँ, ज्यादा ज्यादा व्यापक स्ट्रेंथ है, है। हाँ, व्यापक है। ज्यादा मेरे को ज्यादा जानकारी अभी भी भारत के बारे में है। मुझे नहीं यहाँ लगता कि मैं। जैसे आप कनाडा में जैसे आप बोल रहे हैं 10 साल हो गए आपको आए हुए, यहाँ भी जी क्योंकि अलग अलग देशों से लोग आए हुए हैं, कुछ ऐसे भी हैं जैसे अब अफगानिस्तान से लोग आए हैं, ऐसे और भी कई जगहों से जहाँ से शरणार्थी आते हैं, यहाँ भी आए हैं बहुत से लोग ऐसे। आपको उनके साथ भी कहीं मिलने का सबब हुआ आपका मिलना? डायरेक्टली तो मुझे नहीं लगता मैं ऐसे किसी से मिली हूँ, लेकिन उनकी कहानियां तो मैंने पढ़ी ही हैं और उनके बारे में हमको जानकारी है, क्योंकि यहाँ बहुत शरणार्थी आते हैं अलग अलग मुल्कों से, अलग अलग वजहों के कारण। जंग हो सकता है, जैसे आपने पहले बताया, वो प्राकृतिक विपदा हो सकती है, जंग हो सकती है, कुछ भी अलग उनका कारण हो सकता है, लेकिन वो जब यहाँ आते हैं तो उनकी कहानियां हमको सुनने को जरूर मिलती हैं। और हाँ, जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ भी ऐसे लोग हैं जो कि अफ्रीका के उन मुल्कों से आए हैं जहाँ जंग, या तो जंग छिड़ी हुई है, या वहाँ का जो राजनीतिक माहौल है वो काफी अनस्टेबल है। तो उसके वजह से वो उन लोगों को आना पड़ा। तो हाँ, थोड़ा बहुत परिचय है। जी। तो आपकी कोई नई किताब भी आने वाली है जो आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए? जी, मेरी एक नई दिल्ली पे किताब आने वाली है, और उसका जो उसका जो थीम है, विषय जो है वो है कि दिल्ली में जो है अलग अलग समुदायों ने आके अपना घर बसाया है। जैसे पंजाबी लोग काफी आए बंटवारे के बाद। अ, उससे पहले भी अलग अलग समुदाय के लोग आते रहे हैं, क्योंकि दिल्ली जब से भारत की राजधानी बन गई, तब से वो एक इम्पोर्टेंट सेंटर बन गया काम का, और सब कुछ सरकार का सेंटर है, सब कुछ वहीं पे है। तो ये इसकी कहानी है कि अलग अलग समुदायों ने। अलग 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 कल्चर से लोग आकर वहाँ हाँ, रहने लगे। अलग जैसे अलग। तमिलनाडु से भी लोग रह रहे हैं, केरला से जी भी हैं, सभी जगह जो इंडिया की स्टेट्स हैं, अलग अलग कल्चर है, वहां से आकर वो इधर बसने लगे नौकरी के लिए, रोजगार के लिए। जी जी। तो उसकी उस बारे में ये किताब है कि उन्होंने कैसे दिल्ली को अपनाया, कैसे उसका जो चेहरा था, स्वरूप था उस शहर का, कैसे उन्होंने बदला उसको। क्योंकि 1947 से पहले की दिल्ली और उसकी बाद की दिल्ली बिल्कुल अलग है। अ, तो तो जो आपकी पुस्तक होगी उसमें इसका कंपैरिजन भी है? थोड़ा जो बहुत तो पुरानी दिल्ली जरूर थी, जो आएगा। नई दिल्ली आप जो कह रहे हैं जो बनी है हाँ, उसके बाद? हाँ, थोड़ा बहुत तो वो जरूर उसको दर्शाएगा। क्योंकि जैसे आप इन अलग अलग कम्युनिटीज की बात करें, तो वो ऑटोमेटिकली इस चीज को दर्शाएगा कि
वो फर्क कैसे, क्या 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 चीजें हुई जो अलग हो गई पहले से। जो उसका चेहरा बदला वो कैसे कैसे हुआ? जी जी। जी जी। तो इसके अलावा आप और कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। हमारे शो का समय भी खत्म होने जा रहा है। जी। इसके अलावा मैं एक और भी अनुवाद का काम कर रही हूँ, जो कि मेरी नानी जिनका जिक्र मैंने किया, अमिया सेन, उनकी किताब है। और उन्होंने दंडकारण्य में कि जब दंडकारण्य में एक शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए एक, जी एक सरकार थी, जी ये भी पूर्वी पाकिस्तान वहां बसाया जा रहा था। तो उस वक्त मेरी नानी वहां एक टीम के साथ गई थी जमीनी हकीकतों का पता करने के लिए, और उनको उन्होंने लिखा एक किताब के रूप में। तो उसका भी मैं अंग्रेजी में अनुवाद कर रही हूँ इस वक्त। वो पहले बंगाली में है? हाँ जी, उसका नाम है अरण्य लिपि, क्योंकि वो जंगलों वाला जगह था दंडकारण्य जो है। तो उन्होंने वो सब दर्ज किया उस किताब में, और आंखों देखा उनका जो भी आंखों देखा अनुभव। हाल जिसको बोल लेते हैं। जी जी। तो हमारे शो का समय भी समाप्त हो रहा है। दोस्तों, आप जो हमारे शो के साथ, हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो आप इसको लाइक भी जरूर करना, और दोस्तों के साथ शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद आप सभी दोस्तों का। आपका भी पशुपति जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े और हमारे दर्शकों को जो आपकी किताब है विक्ट्री कॉलोनी 1950 उसके बारे में जानकारी दी, और क्या क्या आप लिख रहे हो, जो नई पुस्तकें आने वाली उसके बारे में जानकारी दी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया सबका।